Jai Hind friends, welcome to Kalyani IS Academy. We are studying conservation of biodiversity. In this lecture, we will study Wildlife Protection Act 1972 and we will study various projects to protect and conserve the wildlife such as Project Tiger, right? Project Elephant, Project Vulture, Project Hangul, etc. 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 And these are important for MPPSC mains examination because in the previous years, right, in the previous years in the mains examination various question has been asked. For an example, one question has been asked, that is what is, right, what is solid waste management act, right, and what are the different characteristics of chemical waste management act. In the same way, 5 marker question may be asked, right? So 5 marker question may be asked, what is wildlife protection? What is Wildlife Protection Act 1972? Right? Second, how, right? What is the role of Wildlife Protection Act 1972 to protect animals in India? या फिर जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि what is the importance of Project Tiger, right? What is the importance of what is the importance of Project Tiger? या फिर जो है 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, right? How can the wild animals be, right? What is conservation of biodiversity and how can the wild animals be protected in India, right? Second thing is that what is the conservation of wild animals and what is the role of Wildlife Protection Act 1972 to protect the wild animals in India, right? Or different 3 marker questions may be asked, right? Different 3 marker question may be asked in the examination, right? For example, what is, right, what is Project Hangul, right? What is Project Vulture, right? What is Project Tiger? तो अगर ये 3 मार्कर में पूछे जाएं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट्स कब से स्टार्ट हुए हैं इंडिया में, सेकंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्ड क्या इन प्रोजेक्ट्स के तहत कोई स्पेशल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया है जिसके माध्यम से जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. So in this way 5 marker, 11 marker or 3 marker question may be asked in the examination, right? Therefore this lecture is important, right? Now let's study what is biodiversity for revision, right? So variabilities or variations, right? So variabilities among plants, animals and microorganisms in a natural region is known as biodiversity, right? And according to Earth Summit 1992, biodiversity is the variation among living organisms from different sources like terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, marine ecosystem and desert ecosystems. Also ecological complexes of which they are a part. राइट, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए 22 मई को वर्ल्ड या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. E.O. विल्सन इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट? नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज कंजर्वेशन, राइट? What is conservation, right? We have studied the conservation of biodiversity in the previous lecture. यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो देखिए, there is a conflict between nature, biodiversity, right, और developmental activities. क्योंकि अगर हमको इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो हमको जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे डैम्स हो, नेशनल हाईवेज हो,
राइट, कैनाल्स उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड, जो फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्रीज है उनको भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। राइट, थर्ड थिंग क्या हो जाएगा कि हमको जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। राइट, और जो ह्यूमन हैबिटेशन है उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अब डेफिनेटली अगर रोड, कैनाल्स, डैम्स या इंडस्ट्रीज को फॉरेस्ट एरिया में या फॉरेस्ट एरिया की पेरीफेरी में एस्टेब्लिश किया जाएगा, सो ऑब्वियसली इससे वहां पर जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, राइट, उन पर इनका क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। राइट, तो एक तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फॉर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, डेफिनेटली जो फॉरेस्ट एरिया है उनको कट करके जो है इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट को अलाउ किया जाएगा। राइट, फॉरेस्ट एरियाज में से चेक डैम्स हैं, कनाल्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली इससे फॉरेस्ट एरिया को कट करेंगे जिससे बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा, लॉस होगा। एंड अलोंग विद द लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, जो वहां के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। राइट, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर फॉरेस्ट एरिया कट होंगे तो उससे उनका नेचुरल हैबिटेशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और सेकेंड, अगर फॉरेस्ट एरिया को कट भी नहीं किया जाता है तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उनका जो हैबिटेट है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। साथ ही साथ पॉल्यूशन होगा, उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होगा। राइट, सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, राइट, उनकी पॉपुलेशन में भी डिक्रीज होगा। देयरफॉर it is the right, it is necessary to protect the wild animals as well as biodiversity। तो इस लेक्चर में जो हम प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है उसको फोकस कर रहे हैं। तो सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, एक प्लांट मैनेजमेंट होता है ताकि हमारे जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं और प्रेजेंट तथा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रह सके और नेचुरल बैलेंस भी हो सके। राइट, तो कंजर्वेशन ऑफ, राइट, conservation of biodiversity is the plant management of natural resources so that natural balance and biodiversity can be maintained, right? And if conservation is asked as a 3-marker question, then we can write this definition, right? Biodiversity conservation or conservation of biodiversity refers to the protection, upliftment and management of biodiversity in order to derive sustainable benefits for present as well as future generations, right? Now 3 मार्कर में अगर आपसे कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएं तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, राइट? बायोडाइवर्सिटी को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की या प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगी। सेकेंड, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। एंड थर्ड, टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। Right? Now let's study Wildlife Protection Act 1972, which is the most important act to protect the wild animals in India. And from here, 5-marker question, right? 5-marker question, 11-marker question may be asked in the examination. 5-marker में पूछा जा सकता है, right? Explain the characteristics of या फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 11 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंजर्वेशन, राइट? एंड हाउ लॉन्ग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। और 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट, व्हाट इज कंजर्वेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। क्लियर? चलिए अब हम इसको यहां पर समझते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अगर ये 3 मार्कर में पूछा जाता है तो हम सीधा सीधा जो है 3 फैक्ट के साथ में इसको फिनिश कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, राइट, जो कि इलीगल हंटिंग को, पोचिंग को और जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है, राइट, उनके साथ जो क्रुएल्टी की जाती है उनको क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, राइट। साथ ही साथ यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was launched in 1972, prohibits the illegal, prohibits the poaching, right, hunting and killing of animals, right, and protects the wildlife animals in इंडिया। ये आंसर किसके लिए हो जाएगा, 3 मार्कर के लिए हो जाएगा। अगर ये 11 मार्कर के लिए और 5 मार्कर में पूछा जाता है तो उसके लिए हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेट्स क्या क्या है, राइट, थ्रेट्स क्या क्या होती हैं, या व्हाट इज द रीजन इन द डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो उसमें यहां पर हो जाएगी, एक तो क्या हो जाएगी, हंटिंग हो जाएगी, राइट, पोचिंग हो जाएगी। अब देखिए हंटिंग और पोचिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है, राइट, ये जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, राइट। जैसे जो डियर, अब अगर आप देखें तो जो मीट है, इंडिया में जो है मीट को जो है प्रेफर किया जाता है। तो कई वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे डियर हो जाएगा, राइट, डियर है, स्वाइन है, राइट, डिफरेंट और भी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके मीट को या मांस को जो है प्रेफर किया जाता है, तो उसके लिए इनको हंट किया जाता है, राइट। सेकंड क्या हो जाएंगे, वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक नेल्स, स्किन्स, राइट, नेल्स, स्किन्स एंड हेयर्स। अगर आप देखें तो जैसे टाइगर है, तो टाइगर के नेल्स को बहुत ही प्योर माना जाता है, या एक तरीके से उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है, राइट। स्किन को जो है वेरियस यूज किया जाता है। और थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेडिसिनल यूज, राइट। तो स्मगलिंग से उनका जो है, जैसे टीथ है, तो टीथ है, या जो वन ऑन राइनो का क्या हो जाएगा, हॉर्न हो जाएगा, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती है। और फोर्थ क्या हो जाएगा, ज्वेलरी में या अदर पर्पस के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि मीट के लिए उनके विभिन्न डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, राइट, साथ ही साथ उनकी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो मेडिसिनल वैल्यूज होती है, उनसे जो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, इस वजह से उनको हंट किया जाता है, उनकी पोचिंग की जाती है और उनको फिर मार्केट में बेचा जाता है ताकि इकोनॉमिक जो है बेनिफिट हो सके। इस वजह से चाहे वो डियर हो, राइट, लॉयन हो, टाइगर हो, राइट, राइनो हो, उनको क्या किया जाता है, उनकी हंटिंग होती है, जिस वजह से जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अलोंग विद दिस थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो जितनी भी डेवलपमेंटल, राइट, जो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में डैम्स को, नेशनल हाईवेज को, राइट, पोर्ट्स को या इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है, तो इससे उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो ब्रीड नहीं कर पाते हैं या सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और उनकी पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। अब अगर हमको जो वाइल्ड लाइफ है या वाइल्ड एनिमल्स है तो उनको प्रोटेक्ट करना हो, तो एक तो क्या है कि हंटिंग पोचिंग रुक जाए, राइट, तो आधा काम खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जहां पर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, राइट, जहां पर उनका नेचुरल हैबिटेशन है, अगर उनको हम प्रोटेक्ट कर दें, वहां पर वहां पर वहां पर जो है जैसे वहां पर माइनिंग करना, राइट, या नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करना, ह्यूमन हैबिटेशन को है अलाउ करना, वो तो छोड़ो, अगर वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी को ही हम क्या कर दें, प्रोहिबिट कर दें, तो वो जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से वो वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इस एक्ट की यही है कि on one hand, right, this act provides security to wild animals, क्योंकि जो हंटिंग है, पोचिंग है, उसको जो है इलीगल कर दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको क्या दी जाएगी, जो है उसको सजा दी जाएगी। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण क्या है
कि किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को किसी भी वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसी एक्ट के माध्यम से जो नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज हैं वो स्टेब्लिश किए जाते हैं। इस वजह से अगर हम देखें तो दिस एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया, राइट। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो इसके जो है इंट्रोडक्शन में हम सीधा लिख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसको 1972 में क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था या इनेक्ट किया गया था, राइट। और इस एक्ट में, राइट, देयर आर 6 शेड्यूल्स, right, so there are 6 schedules in wildlife protection act 1972। इसकी जो शेड्यूल फर्स्ट है, राइट, शेड्यूल फर्स्ट में ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या इन फ्यूचर में जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, राइट, एंड हार्मिंग द एंडेंजर्ड स्पीसीज listed in schedule first of wildlife protection act is prohibited throughout the India। और अगर कोई भी पर्सन ये जो शेड्यूल फर्स्ट की, राइट, शेड्यूल फर्स्ट की किसी भी स्पीसीज को किल करता है, हंट करता है या उसकी पोचिंग करता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, राइट। साथ ही साथ जो शेड्यूल सेकेंड है उसमें भी जो है हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, राइट। जो शेड्यूल थर्ड है और शेड्यूल जो फोर्थ है उसमें शेड्यूल फर्स्ट एवं सेकेंड के कंपैरिजन में जो है लेस सिक्योरिटी है या एक तरीके से जो पनिशमेंट है वो मॉडरेट होता है। वहीं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे क्रो है, राइट, क्रो है, रेट्स है, राइट, these impose नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर और उनको किल करने की जो है अलाउ किया जाता है, और वो किस में है, वर्मिन में है। और ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी जो है पूछा जा चुका है। तो a few species has classified as vermin in schedule 5th, right, may be hunted without any restriction क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। साथ ही साथ इसकी जो शेड्यूल 6 है, राइट, शेड्यूल 6 में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिनको प्रोड्यूस करना, स्टोर करना क्या है, इलीगल है, क्योंकि अगेन वो जो प्लांट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो सीधी सी बात है शेड्यूल 5 में वर्मिन है जिनको हंट करना जो है अलाउ है, वैसे ही शेड्यूल 6 में ऐसे प्लांट हैं जिनको रेयर करना, प्रोड्यूस करना भी क्या है, प्रोहिबिट किया जाता है, राइट। और शेड्यूल फर्स्ट में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो है दिया जाएगा, राइट। चलिए, तो इस तरीके से देयर आर वेरियस प्रोविजंस, राइट, देयर आर वेरियस प्रोविजंस, और इन प्रोविजंस के तहत यदि कोई भी व्यक्ति, राइट, इफ समबडी किल्स, हंट्स या पोचिंग करता है या फिर किसी भी तरह की थ्रेट इंपोज करता है तो उसको पनिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट, जिसमें कितनी शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज दैट कि इनका जो हैबिटेट है, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स वो भी प्रोटेक्ट हो सके, तो उसके लिए भी नेचुरल पार्क्स और जो सेंचुरीज हैं वो इस्टेब्लिश की जा सकती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा, राइट। इफ अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल इज naturally found in this region, so to protect that wild animal, इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को सेंचुरी में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क में क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड नेशनल पार्क्स एंड क्या हो जाएगा, सेंचुरीज हो जाएंगी। तो हमारे देश में वेरियस नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर को, लायन को, हंगुल डियर को, वन हॉर्न राइनो को, इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, राइट। साथ ही साथ अगेन इसमें 1982 में क्या किया गया था, 1982 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था, राइट। और वो अमेंडमेंट इसीलिए किया गया था सो दैट वाइल्ड एनिमल कुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। और वो भी किसके लिए, उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए या फिर
उनके प्रोटेक्शन के लिए. सो एन अमेंडमेंट टू द एक्ट इन 1982 इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोविजन permitting the capture and transportation of wild animals for the scientific management of animal population, right? So this is the Wildlife Protection Act 1972, which plays most important role in the conservation of wildlife, right? Okay, now next is Project Tiger. अब Project Tiger भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है. सबसे पहली चीज तो ये है कि वाई इज प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसका आंसर सीधा हो जाएगा कि जो टाइगर है, द फर्स्ट थिंग इज दैट टाइगर इज द नेशनल एनिमल, राइट? टाइगर इज द नेशनल एनिमल एंड इफ दिस इज आवर नेशनल एनिमल तो हमारी इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल एनिमल, क्योंकि अगर हम हमारे नेशनल एनिमल को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर जो अदर एनिमल्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? तो एक तरीके से टाइगर को प्रोटेक्ट करना हमारी मोरल ड्यूटी है एज वेल एज द लीगल ड्यूटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी हो जाती है, ताकि हम टाइगर को प्रोटेक्ट करके ये मैसेज दे सके कि हम किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट कि जो टाइगर है, राइट, उसको मोस्ट लविंग एनिमल भी माना जाता है, राइट? पीपल प्रेफर टू विजिट द जूस और वो नेशनल पार्क या सेंचुरी जहां पर टाइगर्स क्या होते हैं, राइट, जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं, राइट? और थर्ड थिंग इज दैट कि जो टाइगर है, राइट, टाइगर ये एक अम्ब्रेला स्पेसीज में, अम्ब्रेला क्या हो जाएगा यहाँ पर, अम्ब्रेला स्पेसीज, तो ये एक किस्म अम्ब्रेला स्पेसीज में भी आता है. अम्ब्रेला स्पेसीज क्या है? अम्ब्रेला स्पेसीज या एक फ्लैगशिप स्पेसीज. तो जो टाइगर है वो एक वास्ट फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है एंड इफ वी हैव प्रोटेक्टेड द टाइगर तो उसकी वजह से उस फॉरेस्ट एरिया में अदर स्पेसीज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है. तो दिस इज द अम्ब्रेला स्पेसीज और फ्लैगशिप स्पेसीज. इसीलिए अगर हम टाइगर को प्रोजेक्ट करेंगे तो whole ecosystem would be protected. So these are the 3 reasons to protect the tiger, right? The first is this is the national tiger is the national animal of India. Second, this is the most loving animal of the world. And third, tiger is the umbrella species or flagship species. And if we protect the tiger, तो उससे पूरा को पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट कि जो उस फॉरेस्ट एरिया में जो भी दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, राइट? एंड टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स, राइट, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1 अप्रैल 1973 टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, राइट? तो ये लॉन्च कब हुआ है? 1973 को. तो प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1973 on April 1st, राइट? और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट्स है, टाइगर प्रोजेक्ट्स के तहत किसी भी नेशनल पार्क को या सेंचुरी को जो है टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, और उस टाइगर रिजर्व में ही क्या किया जाता है, टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट? तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1973, राइट, ऑन अप्रैल 1st. और टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व का स्टेटस किसी भी सेंचुरी को या नेशनल पार्क को दिया जाता है, और फिर उस टाइगर रिजर्व में जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, राइट, वो डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, राइट, टेक्निकल एक्सपर्टीज के माध्यम से फिर टाइगर्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट, to protect the tigers by this tiger project, right? और ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है? So this is centrally sponsored scheme by the Ministry of Forest and क्या हो जाएगा, Environment हो जाएगा. तो ये centrally sponsored scheme है, right, of the Ministry of Environment and क्या हो जाएगा, Forest हो जाएगा, right? इसका एम क्या है? वो ये प्रोटेक्टिंग क्या हो जाएगा, टाइगर्स फ्रॉम एक्सटेंशन. एंड गवर्नमेंट हैज सेट अप टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स अंडर प्रोटेक्ट टाइगर टू कॉम्बैट पोचर्स. अब जो जितने भी पोचर्स हैं या स्मगलर्स हैं
उनको एक तरीके से अरेस्ट करने के लिए, कैच करने के लिए जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है उसको सेटअप भी किया गया है, राइट। और जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो फंड्स हैं, राइट, उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो विलेजेस हैं, क्योंकि कई बार जो है टाइगर्स जो है वो विलेजेस पर अटैक करते हैं और इस वजह से जो मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कई बार जो है एनिमल को किल कर दिया जाता है, राइट। ये भी पॉसिबल है कि कई बार जो एनिमल है वो कई ह्यूमंस को टारगेट कर देता है, उनको एक तरीके से इंजर भी कर सकता है और उनको कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है, राइट। बट कई बार क्या होता है कि जो टाइगर्स होते हैं जब वो किसी विलेज पर अटैक करते हैं तो रूरल एरियाज जो है फिर वो उस एनिमल को मतलब अपनी जान बचाने के लिए उसकी डेथ कर देते हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो विलेजेस हैं उनको क्या किया जाता है, रीअलोकेट किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको 5 मार्कर के लिए इतना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा टू राइट एन आंसर, राइट। So tiger is national animal, tiger is living animal and tiger is a umbrella species. Therefore protection of tiger is much required in India, and to protect tiger, Project Tiger was launched on 1st April in 1973. Right? This is centrally sponsored scheme of the Ministry of Environment and Forest. Right? और टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व्स को क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, एंड दिस स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड आल्सो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हैज बीन सेट अप टू कॉम्बैट द पोचर्स, राइट। एंड जो प्रोजेक्ट टाइगर्स फंड्स है are used to relocation of villages to minimize the human tiger conflicts, right? So this is the tiger reserve tiger project 1973. अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को और समझते हैं, हालांकि यहां से अगर थ्री मार्कर में जो है क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। So the first tiger reserve of India is Jim Corbett. So Jim Corbett National Park is the first tiger reserve in India. और वर्ल्ड के जो 70% टाइगर्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। There are 51 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया टिल नाउ। तो 2020 में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, राइट। तो 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, 70% टाइगर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइगर जो रिजर्व था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, राइट। कैलाश सांखल्या, राइट, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट। तो कैलाश सांखल्या इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। और इंडिया का पहला नेशनल पार्क जहां पर टाइगर की डीएनए टेस्टिंग की गई वो कौन सा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क विच इज इन एमपी, राइट। So India's first national park that got the DNA test of tigers is Satpura National Park, Madhya Pradesh. India's largest tiger reserve कौन सा हो जाएगा, नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर is the largest tiger reserve according to area, which is Andhra Pradesh and Telangana. India's smallest tiger reserve is Pech टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, एंड इंडियाज हाईएस्ट हाइट पर जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो नमदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, एंड इंडिया फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइगर स्टेट स्टेटस, राइट। तो जो टाइगर स्टेट का स्टेटस है ये इट वाज दिस जो ये पहली चीज तो ये जो टाइगर स्टेट का जो स्टेटस है ये मीडिया के द्वारा दिया गया है, एंड मध्य प्रदेश वाज नोन एज टाइगर स्टेट अर्लियर, बट 2019 से पहले कर्नाटका में टाइगर्स की संख्या ज्यादा हो गई थी, देयरफॉर द टाइगर स्टेट का जो स्टेटस था वो कर्नाटका को दिया गया था। बट अकॉर्डिंग टू 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें अगेन मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट टाइगर्स इन इंडिया, देयरफॉर मध्य प्रदेश इज टाइगर स्टेट नाउ विद 526 tigers, Karnataka 524 tigers, and Maharashtra 312 tigers, right? चलें
इसके अलावा और कुछ फैक्ट अगर हम देखें तो ये 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। पहला कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, राइट। आई थिंक ये जो स्लाइड है ये रिपीटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 मार्कर के लिए आप फैक्ट याद रखेंगे और 5 मार्कर के लिए जो पूरा थियोरेटिकली फॉर्म में मैंने आपको बताया है ये हमारे लिए 5 मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये कब से स्टार्ट हुआ है, 1972 से स्टार्ट हुआ है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1972 टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड इट इज आल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम झारखंड। इंडिया में अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं वो कहाँ पर है, कर्नाटका में है 6049, असम में है 5729 एंड केरला में है 3054। इस तरीके से द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया कितने हैं, 27,312। तो इंडिया में 27,312 एलिफेंट्स हैं जिनके प्रोटेक्शन के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था झारखंड से। दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, right, and government has recognized elephant as heritage animal on October 2010। और जो वर्ल्ड जो एलिफेंट डे है वो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। नाउ अगर हम देखें तो 12 अगस्त इज द वर्ल्ड एलिफेंट डे, राइट। what is the reason behind द पुचिंग ऑफ एलिफेंट, तो उसके लिए हो जाएगा आइवरी। ये जो एलिफेंट के टस्क होते हैं, राइट, ये जो टस्क होते हैं ये ब्लैक मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव जो है सेल होते हैं और इन टस्क से लिए ही इन एलिफेंट्स को क्या किया जाता है, किल किया जाता है। तो एलिफेंट इज हंटेड मेनली ड्यू टू इलीगल ट्रेड ऑफ आइवरी, या जो इनकी जो टस्क हैं उनके लिए इनको क्या किया जाता है, हंट किया जाता है। सो दीज आर द फैक्ट्स टू राइट 3 मार्कर आंसर। अब अगर हम देखें तो एलिफेंट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। सो वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि इनकी पोचिंग को, हंटिंग को जो है पनिश करता है, राइट। तो एक तो ये कि इनकी हंटिंग और किलिंग जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिनिमाइज की जा सकती है। सेकंड थिंग और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि एलिफेंट भी एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरी पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और अगर ये एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया में मूव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इनकी जो है ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक जो है एलिफेंट कॉरिडोर है उनको क्या किया है, लॉन्च किया है। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होती है, देखिए जो लार्ज फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहां पर एक स्पेशल में एक ऐसा जो है मतलब फॉरेस्ट एरिया में ऐसी व्यवस्था की जाती है एलिफेंट वन प्लेस से सेकेंड प्लेस में जो है मूव कर सके। और अगर इन एलिफेंट कॉरिडोर से अगर वो मूव कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो इसके लिए जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वो 1992 से इंडिया में क्या किए जा रहे हैं, एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और अगर जो एलिफेंट कॉरिडोर्स है वो एस्टेब्लिश होंगे तो एलिफेंट्स मूव कर पाएंगे और वो उनका जो है प्रोटेक्शन हो पाएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या हो जाएगी कि जो एलिफेंट्स है, राइट, एलिफेंट्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा एंड एलिफेंट कॉरिडोर्स के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आल्सो जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहां पर है, बेंगलुरु में है, राइट। और इसके साथ ही एक प्रोग्राम और लॉन्च किया गया है जिसको क्या है, मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, जो कि माइक का क्या है, शॉर्ट फॉर्म में एम मींस मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। और ये 2003 से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, राइट। जो इलीगल किलिंग्स है उनको मॉनिटर करने के लिए।
राइट। तो माइक प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 2003 ताकि जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स है उसको मॉनिटर किया जा सके और उस इलीगल किलिंग को रोका जा सके। आल्सो लोगों को अवेयर करने के लिए हाथी मेरे साथी प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। तो अवेयरनेस फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन इन इंडिया कैंपेन हाथी मेरे साथी जो है वो मई 2011 में लॉन्च किया गया है, राइट। और इसका जो राइट लोगो था वो क्या था, गुजू था, गजू, राइट। गजू इज द लोगो ऑफ हाथी मेरे साथी कैंपेन। और इंडिया का फर्स्ट जो एलिफेंट हॉस्पिटल है वो कौन सा हो जाएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश, राइट। ना हो जाएगा यहाँ पर वल्चर कंजर्वेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। अब हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, वल्चर इज द टॉप और हम कह सकते हैं कि टर्सरी कंज्यूमर, या इसको टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, या क्या इसको क्या कहते हैं, टॉप प्रीडेटर। तो वल्चर इज द टॉप प्रीडेटर एंड टॉप कार्निवोर, राइट, और टॉप कंज्यूमर। तो वल्चर, राइट, वल्चर इज द टॉप प्रीडेटर और द वल्चर इज द टॉप प्रीडेटर और ट्रिपल या थर्ड कंज्यूमर, राइट। तो ये इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज द टॉप प्रीडेटर और थर्ड कंज्यूमर। अब हमारे इंडिया में जो वल्चर्स है उनकी संख्या में डिक्रीज क्यों हुआ है उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। उसका रीजन क्या हो जाएगा, डाइक्लोफेनिक, राइट। द रीजन फॉर डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन इज डाइक्लोफेनिक, वेटेरिनरी, राइट, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसको क्या कहा जाता है, NSAID। तो दिस इज वेटेरिनरी नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, दैट्स इट। अब समझिए यहाँ पर क्या होता है कि जो डाइक्लोफेनिक है ये इसको पेन किलर के रूप में जो एनिमल्स है उनको दिया जाता है। अब इंडिया में क्या की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। तो इंडिया में जब एनिमल हस्बेंड्री की जाती है तो जो फार्मर्स होते हैं वो अपने एनिमल्स को डाइक्लोफेनिक को पेन किलर्स के रूप में जो है देते थे। और जब इस एनिमल के, जैसे मैंने कहा कि किसी काऊ को, बफेलो को या किसी भी पेट एनिमल को डाइक्लोफेनिक दिया और उसकी डेथ हो जाती है और उस एनिमल को यदि वल्चर क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये डाइक्लोफेनिक उन वल्चर्स की किडनी को क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिसकी वजह से रैपिड में जो वल्चर्स हैं उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ वल्चर्स इन 2006 आगे जाकर फिर डाइक्लोफेनिक को क्या कर दिया था, प्रोहिबिट भी कर दिया था। तो ड्यू टू सडन डेथ ऑफ वल्चर्स इन इंडिया इन 2006 जो वल्चर्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को 2006 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, राइट। इसके साथ ही एक और प्रोग्राम है, अ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर इज सेव। अब यहाँ पर एस का मतलब क्या हो जाएगा, सेविंग, ए मतलब एशिया वल्चर, फ्रॉम क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो जो सेव प्रोग्राम है, राइट, द सेव प्रोग्राम इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वल्चर। ऑल्सो द फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर जो एस्टेब्लिश किया गया है धर्मपुर असम में। साथ ही साथ एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन जो है 2020 से 2025 के लिए डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब देखिए जो राइनो होता है, राइनो का जो हॉर्न होता है इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। एंड चाहे वो एलिफेंट हो, एलिफेंट के डस्क हैं, वैसे जो राइनो का हॉर्न होता है उसके लिए राइनो को क्या किया जाता है, किल किया जाता है, इसकी पोचिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रही थी, जिसको रोकने के लिए 1987 में जो है राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। या प्रोजेक्ट राइनो वाज लॉन्च्ड इन 1987 टू प्रोटेक्ट राइनो फ्रॉम इलीगल किलिंग और पोचिंग। और जो वन हॉर्न राइनो है वो केवल और केवल कहां पर पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। सो दिस वन हॉर्न राइनो इज फाउंड ओनली इन इंडिया। और इसके लिए 1987 से ही प्रोजेक्ट राइनो जो है इंप्लीमेंट किया गया है। विद द हेल्प ऑफ WWF इंडियन राइनो विजन 2020 को भी क्या किया गया है,
लॉन्च किया गया था कब? 2005 में। तो इंडियन राइनो विजन 2020 को 2005 में लॉन्च किया गया है ताकि राइनो को कंजर्व किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू कंजर्व एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस इन इंडिया। राइट, अब यहाँ पर अगर आपसे ये 3 मार्कर में पूछा जाए कि विच नेशनल पार्क और सेंचुरीज आर फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, तो उसके लिए 3 आप याद रखना। एक तो क्या हो जाएगा? मानस सेंचुरी असम। राइट, तो मानस सेंचुरी असम और मानस नेशनल पार्क भी है, जालदापारा नेशनल पार्क सेंचुरी भी है, और काजीरंगा क्या है? नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क असम, जालदापारा नेशनल पार्क और सेंचुरी वेस्ट बंगाल, एंड काजीरंगा नेशनल पार्क असम। तो मानस एंड काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, जालदापारा वेस्ट बंगाल, राइट, these are famous for the one horned rhinoceros. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर गंगेस डॉल्फिन। राइट, तो गंगेस डॉल्फिन कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोजेक्ट हो जाएगा, या प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए, अब सबसे पहली चीज तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो गैंगेस रिवर है, राइट, गैंगेस जो रिवर डॉल्फिन है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है 5 अक्टूबर 2009 में क्या किया गया था? इसको अनाउंस किया गया था। राइट, तो गैंगेस डॉल्फिन वाज डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑन 5 अक्टूबर 2009। राइट, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन इन इंडिया में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। राइट, ये जो गैंगेस डॉल्फिन है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स में क्या होती है? पाई जाती है। तो ये जो है रिवर डॉल्फिन है जो कि गंगा रिवर, राइट, ब्रह्मपुत्र रिवर, मेघना रिवर और उनकी ट्राइब्यूटरीज जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्णफुली, संगू रिवर में पाई जाती है। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 2000 है। और ये दिस इज लिस्टेड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका मतलब इसकी जो किलिंग है या इसकी एक तरीके से जो पोचिंग है वो उसके लिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसके लिए कब लॉन्च किया गया? 1997 में। तो वेरी सिंपल, जो गंगेस, राइट, गंगेस डॉल्फिन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1997 टू प्रोटेक्ट द गंगेस डॉल्फिन। Right, and the Ministry of Environment and Forest has notified Ganges dolphin as national aquatic animal on 5th October 2009, and this dolphin is naturally occur in Ganga, Brahmaputra, Meghna and Karnafuli Sangu river ecosystem of Nepal, India and Bangladesh. Right, next हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट रेड पांडा। राइट, अब जो प्रोजेक्ट रेड पांडा है वो रेड पांडा को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा वाज लॉन्च्ड इन 1996, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और दार्जिलिंग में जो है पाया जाता है। राइट, मेनली ये पाया जाता है चाइना में, बट दिस रेड पांडा इज आल्सो फाउंड इन इंडिया, एंड टू प्रोटेक्ट इट प्रोजेक्ट रेड पांडा वाज लॉन्च्ड इन 1996। राइट, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हंगुल, और हंगुल को ही क्या कहते हैं? कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है। ये यहाँ पर हो जाएगा हंगुल। राइट, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पर हंगुल के बारे में, तो हंगुल इज आल्सो नोन एज कश्मीर स्टैग। दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये स्नो रीजन्स में जो है पाया जाता है। इसकी भी इलीगल किलिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से इसकी संख्या में काफी डिक्रीज हुई। राइट, इस वजह से 1970 से ही इसको प्रोटेक्ट करने का जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। राइट, तो प्रोजेक्ट हंगुल, राइट, तो हंगुल इज आल्सो नोन एज, राइट, हंगुल इज आल्सो नोन एज कश्मीर स्टैग, और वी कैन से दैट कश्मीर स्टैग इज आल्सो नोन एज हंगुल। दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर, देयरफॉर टू प्रोटेक्ट। Also, this is naturally found in Dachigram National Park, right, at the elevation of 3035 meters. So it is naturally found in Dachigram National Park at elevation of 3035 meter. To protect hangul,
right? This project was launched in 1970 in Kashmir Valley to save the highly endangered Kashmir stag, right? चलिए अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट हिमालयन मस्क डियर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मस्क डियर। देखिए क्या होता है, ये जो डियर होता है, राइट, इस डियर में जो मेल डियर होता है, द मेल मस्क डियर के जो गाल ब्लैडर होता है उसमें मस्क पाया जाता है, राइट, जिससे एक नेचुरली क्या होती है, फ्रेग्रेंस आती है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक सब्सटेंस होता है, राइट। और इसी वजह से इस एरोमेटिक सब्सटेंस या कस्तूरी, राइट, या मस्क के लिए ही इसको क्या किया जाता है, इसकी पोचिंग होती है, राइट। सो सिंपली ये फैक्ट आप याद रखना। एंड aromatic substance musk is found in the gallbladder of its male antelope, right, due to which it is poached। और इसकी पोचिंग को भी प्रोटेक्ट जो है रोकने के लिए जो है दिस प्रोजेक्ट मस्क डियर वाज लॉन्च्ड इन 1981, राइट, फ्रॉम केदारनाथ सेंचुरी इन उत्तराखंड, राइट। तो इसको केदारनाथ सेंचुरी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था 1981 में। अब यहाँ पर कुछ जो रेफरेंसेस हैं वहां पर 1974 में मिलता है, राइट। आई थिंक जो सही आंसर है वो 1981 है, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। कभी अगर जैसे प्रीलिम्स का कभी आप एग्जाम दे तो इस तरीके से भी आप याद रखना, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट हिमालयन मस्क डियर इट वाज लॉन्च्ड इन 1981, राइट। नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंट conservation institutes, right? So different wildlife conservation institutes of India. The first is National Environment Research Institute। ये कहाँ पर है? नागपुर में। ये सब 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो नेशनल एनवायरनमेंट, राइट, नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एज इन नागपुर। देन नेशनल एनिमल वेलफेयर कहाँ पर है? चेन्नई में। तो नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल एनिमल वेलफेयर बोर्ड चेन्नई में है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में, राइट। तो नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, इंडियन एनिमल वेलफेयर बोर्ड चेन्नई में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। देन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? कोलकाता में है। द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहां है? भोपाल में। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट कहां है? देहरादून में। देन इंडियन वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहां है? देहरादून में। और सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। एंड नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड ये कहां है? इसको जो है एस्टेब्लिश बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। नाउ जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम देखते हैं। ये 3 मार्कर में जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर 3 मार्कर क्वेश्चंस फॉर एमपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। द फर्स्ट इज टाइगर स्टेट, राइट। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इज मध्य प्रदेश। सेकेंड, फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो यूनिट शेड्यूल 7 है, तो शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट है उसमें से फॉरेस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम टू कंजर्व द फॉरेस्ट एरिया वाज लॉन्च्ड इन 1976। ग्रीन गोल्ड इज द टाइटल गिवन फॉर फॉरेस्ट, राइट। White substance of the elephant's teeth is known as ivory, and for this ivory elephants are hunted. Next, world's first national park is Yellowstone National Park, which is in USA. World's Iceland reserved only for birds is, right, Cowsin Iceland. Then home of Asiatic lion is Gir National Park, Gujarat. And establishment of Central Zoo Authority 1992. The India's share of global biodiversity, that is 7.5 to 8%. C. India accounts for only 2.4% the land area of the total land area, right? तो वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसका 2.4% कहां पर? इंडिया में है। But India contributes
7.5 to 8% of the biodiversity of the total of the world. The gateway of biodiversity in India is known as Northeast State, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर भी है और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है. नेशनल पार्क विदाउट फॉरेस्ट वेयर चिंकारा इज फाउंड, तो जहां पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाते वो कौन सा हो जाएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क. अपना वन अपना धन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट. नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान वाज प्रिपेयर्ड इन 2008. हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहां पर हो जाएगा, चेन्नई, जिसको 2003 में स्टेब्लिश किया गया था थ्रू बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002. Right? So in this way we have studied the conservation of biodiversity. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.